بی بی پاک دامن مزار کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا بی بی پاک دامن مزار کا دورہ، مزار پر کام کرنے والے ورکر سے مصافحہ کیا اور شاباش دی۔ محسن نقوی نے مزار پر صفائی اور سیکیورٹی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ سیکیورٹی اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ بی بی پاک دامن مزار کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا بی بی پاک دامن مزار کا دورہ، مزار پر کام کرنے والے ورکر سے مصافحہ کیا اور شاباش دی ہے۔ محسن نقوی نے مزار پر صفائی اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ مزار کا دورہ ہے۔ صفائی کا صورتحال کا جائزہ لیا اور انتظامات بہتر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ احوال جانیں گے شاہزیب سے۔ جی شاہزیب، بتائیے گا دورے کا حوال کیا ہے؟ جی بالکل، بی بی پاک دامن میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے دورہ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ بی بی پاک دامن کی دربار کو زائرین کے لیے کھول دیا جائے، اور اسی لیے اب زائرین جو ہے وہ بی بی پاک دامن کا جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بی بی پاک دامن کے توسیع پروجیکٹ پر کام کرنے والے ورکر سے بھی مصافحہ کیا ہے اور ان کو شاباش بھی دی ہے۔ یہ جو پروجیکٹ تھا وہ تقریباً 3 سال سے جاری تھا، جس کا افتتاح بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تمام تر اس پروجیکٹ کے کام جو ہے وہ ان کو مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ زائرین کے لیے بی بی پاک دامن دربار کو کھول دیا گیا ہے اور وہاں پر زائرین جا کے اپنی حاضری دے سکتے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں کا دورہ کیا جا رہا ہے اور مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کیا بھی جا رہا ہے، اور تمام تر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایات جاری کی ہیں پنجاب پولیس کو کہ سخت سے سخت سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ محرم الحرام کے موقع پر فراہم کی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہزیب شہزاد۔ خبر یہ ہے، پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 22 جولائی سے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ ڈیلرز مارجن بڑھانے کا وعدہ آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ مہنگی بجلی، کم از کم اجرت میں اضافہ اور کاروباری اخراجات بڑھ چکے ہیں۔ ڈیلرز مارجن کی شرح سیٹ نہیں کی گئی۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی ہیڈ آفس میں پریس کانفرنس۔ صدر پنجاب چودھری عرفان الہی نے 22 جولائی سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کیا اور کہا کہ 24 سال سے مذاکرات کر رہے ہیں، ڈیلرز مارجن نہیں بڑھایا جا رہا۔ ہم کسی کو تنگ نہیں چاہتے، نہ ہی جلاؤ گھراؤ پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، پبلک کو بالکل ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجبور ہو کے اتنے مہینوں سے اور ہماری بات نہیں سنی جا رہی، بس یہی کہا جا رہا ہے جی اچھا جی کرتے ہیں، میٹنگ پہ آ رہے ہیں۔ تو غیر معینہ مدت کے لیے یہ ہے چیئرمین صاحب کا جو حکم ہے وہ پورے سارے صوبے جو ہیں اس کو پاکستان کے وہ سارے اس پہ بالکل یک آواز ہیں۔ صدر لاہور چودھری نعمان مجید اور سیکرٹری انفارمیشن جہانزیب ملک کا کہنا تھا کہ پیٹرول پمپ کے اخراجات بڑھ چکے ہیں، لیبر کی کم از کم تنخواہ میں اضافہ ہو چکا، بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے، ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ پچھلے 24 سال سے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 6% پر ہمارا جو مارجن ہے وہ فکس کر دیا جائے، تاکہ ہم جو ہر سال یہ ایک مسئلہ ہمیں پیدا ہوتا ہے، آپریشنل کاسٹ بڑھ جاتی ہے، وابڈا کے جو بل ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ لیبر بڑھ جاتی ہے۔ تقریباً 2004 میں وہ 6 سے انہوں نے 4% کیا، اور 4% کے بعد اب جو موجودہ مارجن ہے وہ ہمیں انہوں نے 2.4% پہ فکس کر دیا ہے، جو کہ تقریباً رفلی کوئی 6 روپے کے قریب بنتا ہے، 6.5 روپے کے قریب۔ تو ہم لوگ اس مارجن سے مطمئن نہیں ہیں۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ گلی محلوں میں پیٹرول پمپ کی مشین رکھ کر غیر قانونی سیل کو بھی ضلع انتظامیہ بند کروانے میں ناکام ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پس عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 90 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب لوڈ شیڈنگ سے بھی چھٹکارا نہ مل سکا۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ لوڈ شیڈنگ کے عذاب کے بعد بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا، بجلی کی قیمت میں 1 روپے 90 پیسے کا اضافہ۔ نیپرا نے باقاعدہ منظوری دے دی، بجلی کی قیمت میں اضافہ 1 ماہ کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا کے مطابق ڈسکوز نے مئی کے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا تھا۔ سی پی پی اے نے 2 روپے 5 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ اضافے کا اطلاق صرف جولائی کے بلوں پر ہوگا۔ دوسری جانب شدید گرمی اور جان لیوا حبس میں بجلی کی طلب بڑھنے لگی۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 4900
मेगावाट से तजावुज कर गई। NPCC की जानिब से लेस्को को 4700 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्ट फॉल का सामना है। शेड्यूल के बरक्स 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही मार दिया, ऊपर से बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। बिजली आती नहीं है, आती है तो घंटे बाद फिर चले जाती है। जिनका तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये बिल था महीने का, वो अब 11-11.5 हज़ार रुपये बिल पे कर रहे हैं। 50 रुपये यूनिट को दे सकता है, किससे करेंगे? गरीब आदमी रोटी खान तो आजत हो गया। बिल कितों जमा कराएगा? गल उन्हां दी आ गई, सब बटन दबाओ तो इंज कर दो और फिर भी बिल आ जाएगा। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर खराब होने के बायस मुतअद्दिद इलाके घंटों बिजली से महरूम, शहरियों को परेशानी का सामना है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। खबर यह है कि वजारत ख़जाना ने आवाम पर मज़ीद बोझ डालने का फ़ैसला कर लिया है। बिजली के बिलों में PTV फ़ीस के साथ साथ अब रेडियो फ़ीस भी शामिल होगी। और इस हवाले से आपको बताएं कि सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत हुआ। वजारत ख़जाना के हुकाम ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि बिजली के बिलों में TV फ़ीस के साथ साथ रेडियो फ़ीस भी शामिल होगी। बिजली के बिलों में 50 रुपये TV और रेडियो की फ़ीस आयद होगी। वजारत ख़जाना के मुताबिक बिजली के बिल में 35 रुपये PTV और 15 रुपये रेडियो फ़ीस आयद होगी। वजारत इत्तलाआत ने इस हवाले से समरी तैयार कर ली है। हुकाम वजारत ख़जाना के मुताबिक सार्फिन से मौसूल होने वाली रकम रेडियो मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च होगी। शहर लाहौर में गंदम और आटे की कीमतें मुस्तहकम ना हो सकी। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 50 रुपये इजाफे से 4750 रुपये फ़ी मन हो गई। महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को नकेल डालने में बुरी तरह नाकाम है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। गंदम और आटे की कीमत बेलगाम, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए से तजावुज कर गया। दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 2920 रुपए में फरोख्त करने लगे। 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए में दस्तयाब। 15 किलो आटे का थैला 2450 रुपए में बेचा जाने लगा। शहरी महंगे आटे की खरीदारी से परेशान और हुकूमत से नाला। कहते हैं गरीब आदमी क्या करे, घर का खर्चा पूरा करें या बच्चों को तालीम दें। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अब तो जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। मजदूर बंदा है, पिसता जा रहा है, आए दिन रेट तेज हो रहे हैं, रेट तो नीचे नहीं आ रहे हैं। आटा क्या, सब्जी क्या, हर चीज के रेट ऊपर हैं। गंदम महंगी हो गई, आटा भी महंगा करना पड़ जाता है। गंदम सस्ती दे घूमो तो आटा भी सस्ता है। रोजाना आटे की कीमतों में इजाफा, रोजाना आटे की कीमत, आज लेने जाओ कोई रेट है, कल लेने जाओ कोई रेट है। 500,000 कमाना मुश्किल है, खर्च करना इतना सौखा है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक मिस नईम का कहना है कि हमारी गंदम मार्केट में नहीं, प्राइवेट माफिया की कमर सरकार अपनी गंदम रिलीज करके तोड़ सकती है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। हुकूमत की जानिब से रिलीफ के दावे बातों तक महदूद हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की दस्तयाबी यकीनी ना बनाई जा सकी। सस्ता आटा और चीनी गायब। सार्फिन घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने लगे। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। सस्ते स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ न दे सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की दस्तयाबी मुमकिन न बनाई जा सकी। शालीमार बाग के इलाके में यूटिलिटी स्टोर पर सारिफीन की लंबी कतारें। खातीन भी गर्मी और हब्स में घंटों इंतजार पर मजबूर। अशिया जरूरिया फिर भी न मिली। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए में मिल रहा है। स्टोर्स पर चीनी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी ओपन मार्केट से चीनी महंगे दामों खरीद रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दीगर अशिया जरूरिया की भी किल्लत। अवाम ने हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने के तमाम दावे मुस्तरद कर दिए। मिलता ही नहीं है जिधर से आटा, परेशानी है। एक पैसे भी लेके तो चीज़ ना मिले तो फिर परेशानी होती है। सुबह 8 बजे जाके टोकन लेना है, उसके बाद आपने अगले दिन 12 बजे जाना है, फिर आपको पता चलेगा कि लो जी आपकी बारी आई कि नहीं। जो हमें सहूलत मैसर है वो हमें नहीं मिल रही। 2-2 दिन इधर खड़े होकर भी हमें वो चीज़ नहीं मिल रही जो इधर सब्सिडी है। सार्फी ने बताया कि अगर कभी यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई आ जाए तो आवाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। महंगाई का ग्राफ मुसलसल बुलंद हो रहा है। पोल्ट्री मसनूआत बहुत से दूर हैं तो सब्जी मार्केट में भी महंगाई का राज बरकरार है। बढ़ती हुई महंगाई से अवाम परेशान है। कहते हैं अब तो कुछ भी सस्ता नहीं रहा। रिपोर्ट देखिए जाहिद आबिद की।
सब्जी मार्केट भी मौसम के ज़ेरे असर। बारिशों से सब्जियों की फसल मुतासिर। मार्केट में सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। टमाटर की सरकारी कीमत 100 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जावल टमाटर 140 रुपए तक मिल रहे हैं। आलू भी 100 रुपए फी किलो तक पहुँच चुके। प्याज 70, लहसुन 500, अदरक 1100 रुपए फी किलो दस्तयाब। बैंगन 150, पालक 80, फूल गोभी 200, भिंडी 180 रुपए किलो है। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी भी बदसूर जेब पर भारी है। ब्रायलर गोश्त मजीद 8 रुपए सस्ता होने के बाद 567 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 257 रुपए फी दर्जन है। अवाम कहते हैं चेक एंड बैलेंस कहीं नजर नहीं आता। इंतजामिया महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रही। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। सब्जियां जो है वो आम सब्ज़ी आप कोई भी ले लें वो 200 रुपये से कम नहीं है। हर चीज़ चिकन देख लें कहाँ चला गया है। इस वक्त तो हर चीज़ इतनी महंगी है कि गरीब की पहुँच से दूर हो गई है और सब्जी जो है हर सब्जी 200 रुपये से कम नहीं है। ओपन मार्केट में सरकारी निखनामों पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। लाहौर में चीनी के डीलर्स ने दावा किया है कि थोक मार्केट में चीनी की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है। 2 रोज़ में थोक मार्केट में चीनी की कीमत 144 रुपये से कम होकर 137 रुपये किलो हो गई है। चीनी डीलर्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 3 रुपये कमी के साथ थोक मार्केट में चीनी 141 रुपये किलो फ़रोख्त हुई। आज मज़ीद 4 रुपये कमी के साथ थोक मार्केट में चीनी की कीमत 137 रुपये फ़ी किलो हो गई। परचून मार्केट में चीनी की कीमत 150 रुपये किलो बरकरार है। चीनी की कीमत एक्सपोर्ट की इजाज़त देने से बढ़ी है। ज़राए महकमा खुराक का कहना है कि स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी चीनी की कीमत में इजाफे की वजह बनी। डॉलर की कदर में मुसलसल चौथे रोज़ भी इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात को इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 35 पैसे महंगा हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हुआ। इंटर बैंक डॉलर रेट 285 रुपये 15 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 293 रुपये तक पहुँच गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक दरामद कुनिंदगान की जानिब से ज़्यादा ख़रीदारी की वजह से डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। महंगाई के हर तरफ वार तफरी भी अब सस्ती नहीं है। लाहौर चिड़ियाघर की एंट्री टिकट में 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। बच्चों की टिकट 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो गई है। बड़ों की टिकट अब 70 रुपये की बजाय 80 रुपये में मिलेगी। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। लाहौर चिड़ियाघर की इंतजामिया की जानिब से टिकटों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। बच्चों की टिकट 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। बड़ों के लिए टिकट अब 70 रुपए के बजाय 80 रुपए में दस्तयाब होगी। शहरी कहते हैं कि तफरीह भी रोज बारोज महंगी होती जा रही है। न जाने महंगाई कितने सितम ढाएगी। पहले ही गरीब अवाम जो है वो महंगाई में फंसी हुई है। ऊपर से जू पार्क वालों ने 10 रुपए टिकट बढ़ा दिया है, तो बंदा बच्चों को लेके सैर करने के लिए आता है। तो इतनी महंगाई हो गई है तो बच्चों ये तो टिकट अफोर्ड करना ही गरीब बंदे के बस में नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर रहे थे। अब 10 रुपये इन्होंने टिकट और बढ़ा दी है। हम लोग पहले बहुत परेशान हैं। ऊपर से इन्होंने जो शॉप बनी हुई है छोटी छोटी, ये भी डबल पैसे ले रहे हैं हमसे। तो इसके बारे में हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ करे। डायरेक्टर चिड़ियाघर अजीम जफर कहते हैं कि महंगाई के पेश नज़र टिकटों में इजाफा किया गया है। एडल्ट्स के लिए 70 से 80 रुपये कर दिए गए हैं और चिल्ड्रन के लिए 40 से 50 रुपीज़ कर दिए गए हैं। तो इस टिकट के इजाफे की वजह यह है कि पिछले साल से लेके अब तक बेतहाशा महंगाई हुई है। जानवरों के खुराक के जो बिल्स हैं वो बढ़ गए हैं। मेडिसिन में इजाफा हो गया, मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब चिड़ियाघर में कार पार्किंग, कैमल राइड समेत दीगर दुकानों के ठेकाजात की नीलामी कर दी गई है। कैमरामैन जिशान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि क्या 5 जुलाई की बारिश ने 30 साला बारिश का रिकॉर्ड तोड़ा है। अदाद व शुमार से मुतल्लिक नया तनाज़ा पैदा हो गया। महकमा मौसमियात ने वासा का रिकॉर्ड टूटने का दावा मुस्तरद कर दिया। वासा इंतज़ामिया अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ये रिपोर्ट देखिए।
5 जुलाई को होने वाली मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। वासा ने दावा किया कि शहर के इलाका लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताहम अब वासा के इस दावे को महकमा मौसमियात ने मुस्तरद कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश की मिकदार हमेशा आलमी मयार के मुताबिक चेक की जाती है। बारिश का रिकॉर्ड बाकायदगी से महफूज किया जाता है। लाहौर में अमसाल इतनी बारिश नहीं हुई कि 30 साल रिकॉर्ड टूट गया हो। जुलाई 1980 में 24 घंटों में एयरपोर्ट पर 332.5 mm बारिश हुई। 43 बरस कबल होने वाली बारिश का अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूट सका। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर शाहिद अब्बास का लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि बारिश की मिकदार का तयन 24 घंटों के मुताबिक किया जाता है। वासा के पास कोई रिकॉर्ड है, न ही बारिश चेक करने वाले आलात दुरुस्त हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश चेक करने के लिए सिर्फ 2 स्टेशन हैं। वासा के पास जो इनकी लगी हुई है रेन मैयर के, वो उसको 30 साल अभी हुए नहीं, क्योंकि इनके पास 30 साल रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा, इनके जो स्टाफ है और जो इनके इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसके तो यही जवाब दे सकते हैं कि वो कितने लोग ट्रेंड है और इनके इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितने कैलिब्रेटेड है। दूसरा, जो हमारे पास 30 साल का रिकॉर्ड है, उसमें तो हमारे जो मैक्सिमम रेन हुई 2 हमारे स्टेशन है, लाहौर एयरपोर्ट पे और जे रोड पे। और जे रोड पे जो थी हमारी 145 थी और एयरपोर्ट पे 132 थी, तो वो 291 ये वाली जो हमारी ऑब्जर्वेशन तो ऐसी कोई नहीं। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया जारी किए गए एदादो शुमार पर कायम है। वासा ने गुज़श्ता 30 साल के एदादो शुमार भी जारी कर दिए। MD वासा खुफरान अहमद का कहना है कि 8 घंटे 30 मिनट में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश को मापने के लिए महकमा मौसमियात के पास सिर्फ 2 गेजेस हैं। जब तक वो अपडेट करते हैं तब तक बारिश कहीं ज्यादा हो चुकी होती है। हमारे पास 18 गेजेस हैं जो लाहौर के तमाम इलाकों में मौजूद हैं।